So let's start lecture number 8, work energy power. ठीक है. So we have covered most of the concepts in work energy power और अब हम एक नया पार्ट पढ़ेंगे which is motion in a vertical circle. It is not a new concept, same concept से जो हमने पढ़े थे अभी conservation of mechanical energy और work energy theorem ही लगाएंगे. But it is a case where it is a case of non-uniform circular motion in a vertical direction. तो इसके अंदर बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी द कंडीशंस बाय अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम. ठीक है, कंडीशंस क्या क्या स्टडी करेंगे. वी आर गोइंग टू स्टडी द ऑसिलेशंस. ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टडी वेदर दिस सपोज जस्ट so this is my circle, so this circle, so under what condition के some it is attached with some string और ये ball है. So under what condition it is oscillating, so that means it is doing a to and fro motion. Second is under what condition it is going to leave the circle. ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है and all of a sudden it will leave the circle. Under what condition it is going to leave the circle. And the third condition is under what condition it will do a complete looping. ठीक है, complete looping का मतलब है it will do a complete circle. Under what condition it is going to do a complete looping. ठीक है, from here till here it will go. ठीक है, we have to find out the conditions for that. ठीक है, so इसके अंदर basically we will have to study the two major factor, which is one is tension, another one is velocity at each and every point in the circle. ठीक है, so for that we are going to use work energy theorem use करेंगे हम. Okay, now we'll move in and we'll try to understand this. Motion in a vertical circle. So motion in a vertical circle, let us first draw that. So suppose this is my thread, so it is an inextensible thread. यहाँ पे एक ball is connected. So vertical circle का motion है, it is going in this direction, it is going against the gravity and it is doing a circular motion like this. ठीक है, so now we will find out we'll say कि it has reached up to from A to B it has reached. We'll find out the parameters at situation B. parameters क्या क्या हम लोग find out करेंगे. basically दो parameters हैं which we are going to find out, which is changing continuously. One is tension, one is the velocity at this point. ठीक है, velocity why it is changing, because there is a tangential acceleration which is in this direction, so that's why this velocity is keep on changing. So it is a non-uniform circular motion. So at each and every point we have to find out the value of t and v, because t and v को understand करके we could able to find out कि ये it will do a oscillation और या फिर it will come out of the circle और या फिर ये पूरा का पूरा loop बना लेगा. ठीक है, so तीनों cases जो होंगे हमारे that depends on the value of t and v, how the t and v are varying. So that is what we have to find out. ठीक है, पहले हम basically निकालते हैं किसी भी एक point पे कि मेरी t की वैल्यू क्या है और v की वैल्यू क्या है. Once we find it out, then we will go in deep into the conditions कि oscillation के लिए क्या condition है और देन माई कमिंग आउट ऑफ द सर्कल के लिए क्या कंडीशन है, लूपिंग के लिए क्या कंडीशन है. ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. सो मास m, l is the string, v naught is the initial speed that I have given it here. ठीक है, सो नाउ at certain point of time we'll say it is having the velocity v. So it is having two acceleration, one is this tangential, one is this in the radial direction में it is having v square by l. Suppose this is my length, so v square by l, it's my radial acceleration or the centripetal acceleration, and the tangential acceleration will be in this direction. It is nothing but the component of mg in this direction, which is nothing but g sin theta. ठीक है, g sin theta. So this is my tangential acceleration. ठीक है, now we'll apply at point B, we'll apply the Newton's second law in the radial direction. ठीक है, so we'll find out कि what all forces is helping in the centripetal acceleration, because it is moving in a vertical circle. So circle में move कर रहा है, it must be having a centripetal acceleration. So we'll find out centripetal force. So we'll find out the centripetal force. ठीक है, so यहाँ पे we are having the mg here. So here we can see here the mg का एक component ये आ गया mg cos theta और एक component ये आ गया sin theta. This is theta and this theta is equal. So mg cos theta and mg sin theta. And इस direction में आ गया मेरा tension, जो मेरा string का tension है. Now what is my centripetal force in this direction is t minus mg cos theta is equal to mv square by l. So from here I've got the value of v, I've got the value of t, टेंशन की वैल्यू आ गई. यहाँ पे if you see tension is continuously varying with theta. theta means कि जैसे यहाँ पे मेरा theta is 0. ठीक है, theta is 0 means cos theta is my 1 if theta is 0. So at that point my tension is mg plus mv square by l.
ठीक है. सो वी की जगह वी नॉट आ जाएगा यहाँ पे, बिकॉज दिस इज माई वेलोसिटी एट थीटा इज इक्वल टू 0. तो एट दिस पॉइंट दिस विल बी माई टेंशन. ठीक है. सो एज द थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज cos theta will decrease. So cos theta decrease करेगा, that means this value is going to decrease. ये value decrease करेगी, that means tension is going to decrease. So tension, as we go up, tension will keep on decreasing, keep on decreasing. So that is one factor which we are going to take it from here. ठीक है. And second thing which we are going to take, if cos theta comes out to be 90 degree, cos theta comes out to be 90 degree means when this ball reach up to this point, ठीक है, up to this point when the ball reach, when the cos theta will become 90 degree, so tension is my mv square by L. ठीक है. Tension is my mv square by L when the cos theta become 90 degree. Okay. So this is what we have deduced from this equation. Now we'll apply the work energy theorem from A to B to get the value of this, to find out the relationship between कि मेरी यहाँ पे कितनी velocity है. ठीक है. So first we'll apply work energy theorem में initial kinetic energy is my half mv square plus work done by all the forces is equal to kinetic energy final. Initial kinetic energy कितनी हो गई, half mv square ये वाली, plus वर्क डन बाय फोर्सेस. कौन कौन सी फोर्सेस है, एक mg फोर्स लग रही है इस पर, एक नॉर्मल लग रही है, एक टेंशन लग रही है. टेंशन की वजह से कोई मेरा वर्क डन नहीं आएगा, बिकॉज इट इज़ परपेंडिकुलर टू द मोशन, सो इट विल नॉट डू एनी वर्क डन. तो यहाँ पे वर्क डन किसकी वजह से आएगा, बस एक mg की वजह से. सो mg की वजह से कितना वर्क डन आया, सो mg इज डाउनवर्ड. और ये कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना हाइट रेस किया, सपोज दिस इज माई L. सो दिस कम्स टू बी दिस वैल्यू विल कम्स आउट टू बी L cos थीटा एंड दिस कंप्लीट वैल्यू इज माई L. सो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. ठीक है. ये वाली वैल्यू इज माई L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. सो ये बॉल यहाँ से यहाँ तक रेस किया, दैट मीन्स दिस मच अमाउंट ऑफ वर्क डन हैज़ बीन डन अगेंस्ट द ग्रेविटी. सो अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क डन किया नेगेटिव माइनस mg इंटू दिस इज माई हाइट, और फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई मेरी, हाफ mv स्क्वायर. ठीक है. फ्रॉम हेयर आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ v एज v naught square minus 2gl 1 minus cos theta. ठीक है. दैट इज माई वैल्यू ऑफ v, हाउ इट इज वेरिंग. सो विथ cos theta, if with theta increasing cos theta decrease करेगा, ये वाली वैल्यू इंक्रीज करेगी, ये वाली वैल्यू इंक्रीज करेगी. सो माई velocity will be keep on, because this is going to increase then. So again, as my theta is going to increase, cos theta increase, cos theta decrease करेगा, तो 1 minus cos theta is going to increase, 1 minus cos theta increase करेगा. So this value is going to increase, that means नेगेटिव में वैल्यू बढ़ रही है. सो दैट मीन्स वी नॉट से वैल्यू और कम होती जा रही है, दैट मीन्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एज वी मूव अप इन दिस डायरेक्शन. ऑब्वियसली टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है मेरा एक्सीलरेशन का इस डायरेक्शन में लग रहा है, जिसकी वजह से माई वेलोसिटी विल बी कीप ऑन डिक्रीजिंग. ठीक है. सो या तो इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, हमारी टेंशन इज ऑल्सो डिक्रीजिंग एंड वेलोसिटी इज ऑल्सो डिक्रीजिंग. सो क्या हो सकता है, मेरा टेंशन वेलोसिटी से पहले जीरो हो जाए या वेलोसिटी टेंशन से पहले जीरो हो जाए. ये दो सिचुएशन हो सकती हैं. ठीक है. अगर ये दोनों सिचुएशन होंगी, सो माई टू कंडीशन इज गोइंग टू कम, दैट इज वी आर गोइंग टू सी. यही दोनों फैक्टर हैं फ्रॉम विच वी आर गोइंग टू जनरेट द कंडीशन. या तो मेरी टेंशन जीरो हो जाए, मेरी वेलोसिटी पहले जीरो हो जाए. ठीक है. कौन पहले जीरो हो रहा है, और या फिर लूपिंग के लिए क्या कंडीशन है, दैट कम्स फ्रॉम दिस ओनली. सो फर्स्ट वी विल सी कि अगर मेरी वेलोसिटी जीरो पे हो रही है, ठीक है, पहले नहीं, फर्स्ट वी जस्ट वांट टू सी एट व्हाट दिस थीटा my velocity is getting zero. So at what theta, this cos theta, this value is getting zero. So that is what we have to find out. So at the value at which my velocity is getting zero, I say it is my angular amplitude. Angular amplitude. So this is my angular amplitude at which my velocity is getting zero. So I'll represent it by alpha. So at this alpha my velocity is my zero. So I consider it as an angular amplitude. Theta is equal to alpha, at which my velocity is zero. So I just put the value of zero here, square it both the sides. From here I got the value of cos alpha. It is my 2gl minus you can get it directly also, but applying the जब आपके पास क्वेश्चन होंगे, you can directly apply the work energy theorem from here to here. So that also there also you can get the value, क्योंकि वहाँ पे kinetic energy final zero हो जाएगी. तो there also you can deduce the value of cos alpha, which is your angular amplitude. ठीक है. वहाँ से भी निकाल सकते हैं. और otherwise direct formula is this, कि I put the value of this as zero, and from here I put theta is equal to alpha, and I've got the value here. Cos alpha is my 2gl minus v naught square, initial velocity जो मैंने यहाँ पे दी थी, divided by 2gl. ठीक है. राइट. सो ओके. सो v naught की वैल्यू अगर मेरी रूट टू जी एल से कम है, दैट मीन्स मेरा cos alpha, अगर मेरी v naught की वैल्यू, v naught इज माई
V naught is my root 2 GL. So that means cos alpha comes out to be positive. So this alpha comes out to be positive when my V naught is less than root 2 GL. ये वैल्यू कब जीरो होगी? cos alpha is 0 when the value V naught comes out to be ये value 0. If I put the value this 0 means cos alpha comes out to be 0 when my V naught comes out to be V naught square comes out to be 2 GL. ठीक है, so V naught comes out to be root 2 GL. At this value, when my V naught की value root 2 GL है, at this point my angular amplitude will be 90 degree. ठीक है, because cos alpha comes out to be 0 and alpha is my 90. ठीक है, so जब मेरी V naught की value is my root 2 GL हो जाएगी, at that point my cos alpha comes out to be 0. जब मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पे डालूंगा, cos alpha comes out to be 0 और cos alpha 0 हो गया, that means alpha comes out to be 90 degree. So it will go up to this point. ठीक है, this is my cos alpha is equal to 90 degree. It will go up to this point. ठीक है, यहाँ के बाद इसकी velocity at this point B, velocity will get 0. Okay, so this is my angular amplitude formula. Right, we will move forward. अब हम टेंशन के ऊपर देखते हैं. टेंशन मेरी कितनी आ रही है? T इज इक्वल टू टेंशन ऑल्सो वेरिंग. वी हैव सीन दैट ऑल्सो वेरिंग विथ कॉस थीटा और वेलोसिटी इज ऑल्सो चेंजिंग. सो एट वी नो कि यहाँ पे हमने देखा थीटा के साथ वेलोसिटी भी चेंज कर रही है और कॉस थीटा इटसेल्फ इज चेंजिंग. सो बोथ द फैक्टर्स आर चेंजिंग. सो व्हाट वी विल डू, विल कन्वर्ट दिस इनटू थीटा ओनली. सो हमारे को एक थीटा के अंदर वेरिएबल मिल जाएगा, फिर हम वी कुड एबल टू डिड्यूस कि थीटा से कितने वैल्यू चेंज हो रही है. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन में देखें तो हमारा वी भी चेंज हो रहा है बिकॉज वी इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली एज वी गो अप और थीटा इज ऑल्सो चेंजिंग. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी स्क्वायर की जगह ये वाली वैल्यू डाल देंगे, दिस वैल्यू. ठीक है, ये वैल्यू डालेंगे, वी पुट द वैल्यू एंड वी हैव गॉट, वी डिड्यूस द इक्वेशन ऑफ टेंशन एज दिस एम वी नॉट स्क्वायर, दिस इज कॉन्स्टेंट, 2 mg इज माई कॉन्स्टेंट एंड प्लस 3 mg कॉस थीटा. यहाँ पे मेरा आ गया एक फैक्टर आ गया जिसके ऊपर डिपेंड है टेंशन. एज माई कॉस थीटा इज गोइंग टू इंक्रीज, सो थीटा इज गोइंग टू इंक्रीज. थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है. ठीक है, थीटा जब 0 डिग्री है दैट मीन्स दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 3 mg minus 2 mg comes out to be mg. So at theta is equal to 0 degree, t comes out to be mg plus m v naught square by l. ठीक है, और थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, सपोज थीटा इज गोइंग टू इंक्रीज, कॉस थीटा इज गोइंग टू डिक्रीज, कॉस थीटा डिक्रीज करेगा दैट मीन्स दिस वैल्यू इज गोइंग टू डिक्रीज, दिस वैल्यू इज गोइंग टू डिक्रीज, दैट मीन्स द ओवरऑल वैल्यू इज गोइंग टू डिक्रीज, ओवरऑल वैल्यू इज गोइंग टू इंक्रीज, sorry, overall value is going to increase. So then my tension is going to decrease, overall tension is going to decrease. So जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा माई टेंशन इज गोइंग टू, जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी. तो ये दोनों फैक्टर अगर मेरे दोनों पॉजिटिव है तो इन दोनों की वैल्यू मेरी कम होती जाएगी और इसमें से 2 mg तो सेम फैक्टर माइनस हो रहा है. सो दैट मीन्स अगर मैं कोई कांस्टेंट अगर मैं ले लूँ x-5, अगर मैं x की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज, सो x-5, अगर मैं x की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज करता जाऊँ 10-5 इनिशियल वैल्यू, अगर मैं x की वैल्यू डिक्रीज कर दूँ 9-5 से 7-5. ठीक है, तो हमेशा मेरी जो फाइनल वैल्यू कम्स आउट टू 5, 4, 2. सो ये वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है. सेम वे ये दोनों जो फैक्टर मैं ले लूँ, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर, ये दोनों पॉजिटिव है. सो ये इसमें कॉस थीटा की वैल्यू इज गोइंग टू गेट चेंज. तो दैट मीन्स दिस फैक्टर इज डिक्रीजिंग. तो ये फैक्टर डिक्रीज कर रहा है जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है और ये तो कांस्टेंट फैक्टर है मेरा 2 mg. तो जैसे जैसे थीटा डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, थीटा इंक्रीज करेगा, कॉस थीटा डिक्रीज करेगा, कॉस थीटा डिक्रीज करेगा, माई टेंशन इज गोइंग टू गेट डिक्रीज. सो टेंशन धीरे धीरे डिक्रीज करती जाएगी. ओके, सो फ्रॉम हेयर वी हैव सीन cos theta increase, theta is going to increase, cos theta decrease, tension is going to decrease, and at theta is equal to phi हम ले रहे हैं. यहाँ पे हमने देखा था पिछले केस में थीटा इज इक्वल टू अल्फा इज माई एंगुलर एम्पलीट्यूड एट विच वेलोसिटी विल गेट 0. अब हम पहले फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे टेंशन किस पॉइंट पे 0 करे होगी. और फिर हमने जो देखा था कि हमारी जो कंडीशंस होंगी ऑसिलेशंस की या कमिंग आउट ऑफ सर्कल, दैट डिपेंड कि कौन सी वैल्यू पहले 0 हो रही है, वेलोसिटी पहले 0 हो रही है, टेंशन मेरी पहले 0 हो रही है. ठीक है, जो भी वैल्यू पहले होगी उसके अकॉर्डिंग ही मेरा ऑसिलेशन एंड कमिंग आउट ऑफ सर्कल होगा. सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फाई की वैल्यू क्या है मेरी, एट विच माई टेंशन विल गेट 0. सो आई पुट द वैल्यू here t is equal to 0 and to get the value of cos phi, यहाँ से मेरी cos phi निकल के आई, this is my value of cos phi. cos phi की वैल्यू आई 2gl minus v naught square. ठीक है, this is my value of cos phi where tension will get 0. ठीक है, where tension will get 0. okay, so now we'll see कि conditions, will understand the conditions. ठीक है, अब हम conditions देखते हैं जो हमने देखी थी कि condition of oscillation
ऑन द बेसिस ऑफ दिस. सो हमने टेंशन देख ली कब जीरो होती है, हमने वेलोसिटी देख ली कब जीरो होती है, एंड वी हैव गॉट द इक्वेशन ऑफ टेंशन. ठीक है, एट एवरी पॉइंट विच इज ऑन द बेसिस ऑफ थीटा एंड डिपेंडिंग ऑन टी, एंड वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ वी एट ईच एंड एवरी पॉइंट डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा. अब इन चारों के की ही कॉम्बिनेशन से विल ट्राई टू फाइंड आउट कि कंडीशन ऑफ माई कंप्लीटिंग वर्टिकल सर्कल. ठीक है, सो लेट अस फाइंड आउट. सो कंडीशन वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने के लिए वी नीड टू हैव द टेंशन एट दिस पॉइंट शुड गेट, at this point the tension should get zero and there should be some velocity should be zero. So tension should never be zero between A and C. इसके बीच में टेंशन जीरो नहीं होनी चाहिए. अगर इसके बीच में टेंशन कहीं पे भी जीरो हो गई, the string will get slack and it will come out of the circle. It will get come out of the circle. It will do a parabolic path. अगर इससे पहले A और C के बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर मेरी टेंशन जीरो हो जाती है, then I can say it will not do सर्कल नहीं बनेगा. देन इट विल नॉट डू अ सर्कुलर मोशन. द स्ट्रिंग विल गेट स्लैक, यहाँ से स्लैक हो जाएगी स्ट्रिंग, एंड इट विल डू अ पैराबोलिक पाथ. ठीक है, सो फर्स्ट कंडीशन इज अ स्ट्रिंग विल नेवर गेट जीरो बिटवीन दिस टू दिस. एंड वी नो कि टेंशन इज कंटिन्यूसली कीप ऑन डिक्रीजिंग. सो एक पॉइंट ऐसा ना आ जाए कि पहले ही जीरो हो जाए मेरी टेंशन की वैल्यू बिफोर माई वेलोसिटी विल बी देयर बट टेंशन विल गेट जीरो. ठीक है, सो नाउ विल फाइंड आउट कि टेंशन कंप्लीटिंग द सर्कल का मतलब है कि टेंशन एट दिस पॉइंट विल गेट जीरो. ठीक है, इफ टेंशन एट जीरो एट एनी पॉइंट द स्ट्रिंग विल गेट सेलेक्ट बिटवीन ए एंड सी. ठीक, फॉर कंप्लीटिंग द सर्कल नाउ, to complete the circle I need to have the minimum value at tension at C that can be zero. ठीक है, अगर यहाँ पे एक जरा से पॉइंट के लिए जीरो होगी वैल्यू, then also it will do the complete circle because of my velocity is there, it will come forward and the tension is going to come. ठीक है, अगर इस पॉइंट पे जस्ट मोमेंटरली भी जीरो हो जाएगी TC. ठीक है, TC पे अगर T minimum will put it zero, it will still do a complete circle. So we will calculate the value of TC पे निकालते हैं. So TC पे क्या होगा मेरा, दिस इज माई टेंशन, इधर ही मेरा mg लग रहा होगा. ठीक है, टेंशन भी इधर, mg भी इधर, एंड दिस इज माई वेलोसिटी एट C vc स्क्वायर. सो विल डू अ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, टेंशन प्लस mg. सो TC प्लस mg इज इक्वल टू mc स्क्वायर. नाउ फॉर लूपिंग माई TC शुड बी ग्रेटर देन जीरो. इस पॉइंट पे मिनिमम जीरो होनी चाहिए, जीरो से ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली इट विल ऑलवेज डू द सर्कल. जो मेरी लिमिटिंग कंडीशन है कि इस पॉइंट पे टेंशन एट जीरो हो जाएगी तब भी इट विल डू अ सर्कल. ओके, दैट इज माई लिमिटिंग कंडीशन. सो टेंशन शुड बी ग्रेटर देन जीरो. टेंशन यहाँ से हमने देखा, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज करते जा रहे हैं. टेंशन विल कीप ऑन डिक्रीजिंग एज माई थीटा इज इंक्रीजिंग. सो ऐसी कोई कंडीशन नहीं आनी चाहिए जिस A और C के बीच में जिसमें मेरी टेंशन पहले ही जीरो हो जाए. टेंशन अगर मेरी पहले जीरो हो गई, सो इट विल नेवर डू सर्कल, complete circle. It will never do the complete circle. Never do complete circle. इस केस में it will never do the complete circle. So now we have put the condition of looping. TC at this point it should be greater than zero. So that means my TC is mc square. I'll take the value here. So mc square by L should be greater than my mg. m से m cancel, and I've got the value of vc is greater than root gl. So इस point पे जो मेरा जो velocity होगी that should be greater than root gl. Then only I can say my tension will not be zero. So velocity होनी चाहिए and that velocity should be greater than root gl. अगर रूट जी एल से ज़्यादा वेलोसिटी है देन आई कैन से कि इट विल डू अ कंप्लीट सर्कल. अब मैं निकालता हूँ कि मेरी इस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी लग रही है. सो वी कैन डू इट विद सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम कि यहाँ से यहाँ तक जाने में मेरे को यहाँ पे पता है वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है, एंड द वर्क डन इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटी ओनली. ठीक है, वी डोंट हैव एनी अदर और कोई वर्क डन नहीं है फोर्सेस का. टेंशन का है बिकॉज ऑफ परपेंडिकुलर मोशन, सो द वर्क डन बाय टेंशन विल बी जीरो. ठीक है, सो यहाँ पे हम विल फाइंड आउट आर वैल्यू. you can also do the value from direct formula. ये जो हमने formula निकाला था, here also you can put the value of vc at root gl square करके you can get the value of v naught also. ठीक है, that also we have got it from the work energy theorem. So we put the value here, gl की वैल्यू डाल दी, va निकालना है मेरे को, va is equal to रूट टू जी एल, और यहाँ पे cos थीटा कितना हो गया, यहाँ पे cos थीटा विल बी 180 डिग्री पाई. सो cos 180 डिग्री -1, सो -1 कम्स आउट टू बी 2, सो दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी दिस, एंड -4 जी एल, ये इधर जाएगा 5 जी एल. सो वी ए की वैल्यू आ गई रूट 5 जी एल. सो वी ए पे अगर मेरी वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन रूट 5 जी एल, इस पे ज़्यादा वैल्यू मेरी रूट 5 जी एल से होगी तभी ये मेरा यहाँ पे इस पॉइंट पे रूट जी एल पहुँचेगा मिनिमम. ठीक है, तभी ये फुल सर्कल कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा. ठीक है, ओके, देन ओनली इट विल डू अ सर्कल. अगर इसकी वैल्यू इससे कम होगी तो मेरी टेंशन पहले ही यहाँ पे कहीं पे जाके जीरो हो जाएगी.
ठीक है, टेंशन मेरी इसी बीच में पहले ही कहीं पे जीरो हो जाएगी अगर मेरी वेलोसिटी की वैल्यू पहले ही यहाँ से √5 GL से कम मैंने भेजी, √5 GL से कम, तो मेरी टेंशन इस पॉइंट में कहीं ना कहीं जाके जीरो हो जाएगी एंड आफ्टर दैट इट विल डू अ पैराबोलिक पाथ. दिस विल बी अ पैराबोलिक पाथ rather than the circular path. Okay, now we'll see the next condition. Next condition is my condition for oscillations. Next condition is condition of oscillation. सो कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन क्या है कि मेरी स्पीड बिकम जीरो बिफोर द टेंशन. ठीक है, सो ऑसिलेशन क्या होता है कि दिस व्हेन आई पुश इट हेयर सो इट विल गो अप टू हेयर एंड it will not go here and the tension should not go zero here and it should not do the parabolic path. अगर ये इससे ऊपर चला जाएगा then the tension will get zero before the velocity. So मेरे को यहाँ पे जो कंडीशन करनी है speed should get zero before the tension. ठीक है, यहाँ पे टेंशन जीरो नहीं होनी चाहिए बट वेलोसिटी जीरो पहले हो जाए इसमें, पर स्पीड पहले जीरो हो जाए वाली. ठीक है, दिस शुड गेट जीरो फर्स्ट, V0 should get zero first rather than the tension should get zero. सो मेरे को श्योर शॉट पता है कि इतने पोजीशन में इन दिस पोजीशन माई टेंशन विल नेवर बी जीरो बिकॉज इफ़ आई सी कि माई टेंशन की वैल्यू कितने हैं mg cos थीटा mv²/r. ठीक है, अगर मेरा वेलोसिटी जीरो हो जाता है तो टेंशन इज माई mg cos थीटा और यहाँ पे थीटा कितनी है 0 से π/2 और 0 से π/2 के बीच में माई cos थीटा विल नेवर बी जीरो. ठीक है, ओनली ऑन द π/2 माई टेंशन विल गेट जीरो. ठीक है, सो मेरे को पता है इतने से इतने के बीच में कहीं पे भी होगा माई टेंशन विल नेवर गेट जीरो, टेंशन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. ठीक है, इवन इफ द वेलोसिटी विल जीरो टेंशन विल नेवर गेट जीरो बिटवीन थीटा में 0 से 2π. ठीक है, और हेयर ऑल्सो फ्रॉम 0 टू -2π. ठीक है, इन दोनों साइड में माई टेंशन विल नेवर गेट जीरो यहाँ से यहाँ तक में. ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक आराम से जा सकता है, यहाँ से यहाँ तक आराम से जा सकता है. सो इन दीज टू केसेस ओनली between these 2 point only tension will never get zero. So that we are sure shot in this. अगर मेरी velocity zero हो जाए that means the particle will always do the oscillation. अगर मेरा particle किसी भी ये दोनों extreme point B और D वाला है, इनके बीच में कहीं पे भी velocity मेरी zero हो गई then it will come back, it will do the oscillation. ठीक है, so condition is it will become zero before the tension मुझे पता है कि इन दोनों के बीच में पॉइंट के बीच में कभी ज़ीरो नहीं हो सकती. ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच में. सो दैट मीन्स कि इन दोनों पॉइंट के बीच में मेरी वेलोसिटी जीरो हो रही है. सो विल फाइंड आउट द वेलोसिटी जीरो. सो यहाँ पे वी जस्ट यूज दिस इक्वेशन, वेलोसिटी इक्वेशन v इज इक्वल टू दिस. नाउ वी पुट द वैल्यू के एट cos थीटा एक्सट्रीम सिचुएशन पे निकालते हैं एस cos थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे. So once we put the cos theta 90, this will get zero. So value will be reduced to this. So at VB हम लोग एक्सट्रीम निकालते हैं कितनी यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी दे कि बस ये यहाँ तक पहुँच जाए, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए. ठीक है, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए कि यहाँ पे नहीं तो ऊपर पहले टेंशन जीरो हो जाएगी वेलोसिटी से, तो इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए. फॉर द ऑसिलेशन इट शुड रीच अप टू दिस पॉइंट, दिस इज माई मैक्सिमम एक्सट्रीम पॉइंट बी एंड डी. सो मैं बी पे वेलोसिटी निकाल लेता हूँ कितनी मेरी बी पे मेरी ज़ीरो वेलोसिटी हो जाए. ठीक है, सो इसके नीचे अगर मेरी वी बी ज़ीरो हो रही है दैट मीन्स यहाँ पे वी ए पे मैं कोई वेलोसिटी दे रहा हूँ, दैट मीन्स वी बी पे जाके वो वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है. दैट मीन्स कि अगर मैं उससे जितनी भी वेलोसिटी कम दूंगा तो ऑब्वियसली इट विल फॉल अंडर दिस. ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी ए वी आर गोइंग टू फाइंड आउट सो दैट इट विल गेट वी बी ज़ीरो. अगर मेरी वी ए की वैल्यू उससे कम होगी देन ऑब्वियसली always it will do an oscillating motion. Okay, so that is what we have to find out. So we'll find out at the extreme. At the extreme we have done cos theta is equal to 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री डाल दी, यहाँ पे जीरो हो गया, 2gl आ गया एंड फ्रॉम हेयर वी पुट द वैल्यू ऑफ वी पे जीरो वैल्यू, फ्रॉम हेयर वी गॉट द वैल्यू ऑफ V0 एज √2gl. सो अगर मैं यहाँ पे √2gl दूंगा इट विल रीच अप टू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट पे ही वैल्यू जीरो होगी और मुझे पता है इस पॉइंट पे कभी टेंशन जीरो नहीं होगी. सो दैट मीन्स के इट विल फॉल बैक हेयर. ठीक है, इट विल फॉल बैक हेयर देन इट विल ऑलवेज डू. ठीक है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज लेसर देन √2gl, बॉल बिटवीन बी एंड डी विल ऑलवेज ऑसिलेट. ठीक है, इन दोनों के बीच में बॉल विल ऑलवेज ऑसिलेट. Between B and D we have seen the tension will never be zero even if the V is zero. Even if my V is zero, so tension will be having some component cos theta. यहाँ पे भी यहीं पे ही लास्ट पे जाके थीटा T की वैल्यू ज़ीरो होगी एट B और D, अदरवाइज बीच में कहीं पे भी थीटा की वैल्यू कहीं पे भी ज़ीरो नहीं होगी. ओके, सो नाउ विल सी कि अगर मैं V0 की वैल्यू √2gl देता हूँ तो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट आवर टेंशन and we are going to find out our angular amplitude कि टेंशन किस पॉइंट पे ज़ीरो होती है. cos phi निकालते हैं, cos थीटा निकालते हैं. माई वेलोसिटी इफ़ आई एम गिविंग इट हेयर एट √2gl.
ठीक है. If velocity is my root 2, if velocity is my if velocity will get 0, g sin theta will push it back and the motion will always be oscillatory. किसी भी पॉइंट पे देखोगे आप g sin theta का कंपोनेंट इज गोइंग टू पुश इट बैक. एक इस पॉइंट पे इट विल बी डाउन हेयर g sin theta, इट विल बी मैक्सिमम 1 g होगा यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे g होगा. सो we have seen if velocity will get 0, g sin theta component will push it back and the motion become oscillatory. Now we'll see कि अगर मेरी velocity रूट 2 gl है यहाँ पे इस पॉइंट पे रूट 2 gl से मैंने फेंका, रूट 2 gl से cos alpha कितना है? Cos alpha is our angular amplitude at which my velocity will get 0. If I put the value here, alpha comes out to be pi by 2, which we have already seen it here. So again then phi देखते हैं, cos phi at which tension will get 0. टेंशन कहाँ पे 0 हो रही है? If I put the value of root 2 gl here, velocity की जगह cos phi comes out to pi by 2, we can conclude कि both t and v naught will get 0 if we throw the ball यहाँ से यहाँ पे अगर मैं root 2 gl स्पीड दूँ, so दोनों मेरी टेंशन और एंगुलर एम्पलीट्यूड बोथ यहाँ पे टेंशन एंड वेलोसिटी विल गेट 0 एट दिस पॉइंट. ठीक है, अगर मैं रूट 2 gl से फेंक रहा हूँ बॉल यहाँ पे रूट 2 gl. ठीक है, सो इस एट दिस स्पीड इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे माई टेंशन एंड वेलोसिटी विल बोथ गेट 0 pi by 2 एट बी एंड डी. ओके, बॉब विल ऑसिलेट इन द लोअर हाफ. इफ माई वेलोसिटी इज लेस देन दिस, लेस देन रूट 2 gl, बॉब विल ऑसिलेट इन द लोअर हाफ. Okay, now we'll move on. We'll see the condition for leaving the circle. Condition for leaving the circle. Leaving the circle का मतलब है कि it will not follow a circular path, कि वहाँ पे उसका centripetal acceleration will be मतलब जब तक ये सर्कल में है till then we are having the centripetal force. ठीक है, जैसी इस पे centripetal force हट जाएगी it will be coming out of circle, so we cannot apply the centripetal force equation. जो न्यूटन्स लॉस की हम centripetal force equation लगाएंगे, after that we cannot apply, after that it will follow a parabolic path. ठीक है, so we'll have to find out the condition for the leaving the circle. Condition for leaving the circle is कि tension will get 0 before speed. ठीक है, कि किसी पॉइंट पे हमने देखा यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी विल गेट 0, टेंशन विल नेवर गेट 0. अब मेरे पास बचा यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन, और यहाँ तक का हमने देखा इसके बाद होगा तो टेंशन विल यहाँ से यहाँ तक में टेंशन विल नेवर गेट 0, बिकॉज टेंशन का एक यहाँ से यहाँ तक में टेंशन एंड यहाँ से यहाँ तक में टेंशन विल नेवर गेट 0. और हेयर तो हमने देखा था यहाँ पे इन दोनों पॉइंट में टेंशन विल नेवर गेट 0 इन दीज 2 पॉइंट्स, और दिस पॉइंट ओनली टेंशन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ टेंशन गेटिंग 0. ठीक है, इस वाले पॉइंट पे. सो विल फाइंड आउट कि किस एंगल पे जाके और किस पॉइंट पे जाके टेंशन विल गेट 0 एंड द वेलोसिटी विल नॉट गेट 0 बिटवीन दिस. सो विल हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट इन दिस. Okay, so tension 0 before the speed will get 0. So speed is there and the tension will get 0. String will get slack string say it will move in the parabolic path. Suppose it's making an this is theta, so it will be equal to phi only. So this is the point where my tension will get 0. ठीक है, it is a point where my tension will get 0. इसके बाद इसके पास velocity तो अभी होगी, then it will do a parabolic path. It will do a parabolic path. इसके बाद हमारे को जो भी चीज़ें फाइंड आउट करनी होगी with the reference from the parabola करेंगे. तो यहाँ पे हम लोग velocity निकाल लेंगे, vy vx निकाल लेंगे, मैक्सिमम हाइट पूछी जाएगी, मैक्सिमम हाइट निकाल लेंगे, रेंज निकालनी होगी, रेंज निकाल लेंगे, और कोई पॉइंट से अगर ये पास ऑन कर रही है, सो वी कैन यूज़ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला के वाली इक्वेशन डाल के वी कैन फाइंड आउट दैट वैल्यू ऑल्सो. सो मल्टीपल क्वेश्चंस कैन बी बिल्ड अपॉन दिस. ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक तो सर्कुलर पाथ करेगा और उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक ये फिर पैराबोलिक पाथ हो जाएगा. सो विल फाइंड आउट दिस रिलेशनशिप कि बिटवीन 90 to 180 डिग्री, कि यहाँ से 90 से 180 डिग्री के बीच में बिटवीन बी एंड सी द स्ट्रिंग विल गेट स्लैक. वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी. सो विल से कि एट पॉइंट बी, समवेयर पॉइंट बी, द टेंशन विल गेट 0. So we'll find out, we'll see at point B, still it in the edge of the circular motion. We'll put a equation here. इक्वेशन रखते हैं. सो टी इधर की डायरेक्शन में होगा प्लस एम जी ये होगा. ठीक है, और एम जी कॉस थीटा का कंपोनेंट भी इधर आएगा, एम जी कॉस थीटा. सो एम जी कॉस थीटा का भी कंपोनेंट आ गया. सो टी प्लस एम जी कॉस थीटा इज माई एम वी स्क्वायर बाई आर. इवन इफ टी इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी, इवन इफ टी इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी विल नॉट बी 0 बिकॉज टी इज इक्वल टू 0. कॉस थीटा का जो कंपोनेंट वेलोसिटी विल नॉट बी 0 एट दिस पॉइंट. ठीक है, इवन इफ टी इज इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा के कंपोनेंट की वजह से दिस वैल्यू विल नॉट बी 0. ओके, द स्पीड की वैल्यू, नॉट द डायरेक्शन, द स्पीड की वैल्यू विल नॉट बी 0. नाउ इफ वी पुट द टेंशन इज इक्वल टू 0, स्ट्रिंग स्लैक ओनली एफ जी नाउ एंड इट विल अंडर द प्रोजेक्टाइल मोशन. अगर यहाँ से
अगर मेरा स्लैक हो जाती है तो ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी इस पे, पार्टिकल के इस पे बाद से टेंशन हट जाएगी, ओनली इस पॉइंट के बाद से इट विल बी ओनली द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द पार्टिकल विल डू द प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, नाउ विल फाइंड आउट, सपोज वी, सो द वैल्यू कम्स आउट टू बी दिस वैल्यू. ठीक है, अगर मेरी वैल्यू ये, बिकॉज हमने देखा यहाँ तक √2 GL है, अगर मैं √2 GL से फेंकता हूँ √2 GL, सो इट विल रीच अप टू दिस पॉइंट. ठीक है, ये अप टू दिस पॉइंट पहुँचेगा √2 GL से, यहाँ तक पहुँचेगा. अगर मैं इसको √5 GL से फेंक रहा हूँ, √5 GL से फेंक रहा हूँ, सो ऑब्वियसली इट विल रीच अप टू दिस पॉइंट, ये यहाँ से हो जाएगा और फिर इट विल कंप्लीट अ सर्कल. ठीक है, अगर मैं इसको √5 GL से फेंक रहा हूँ, सो द वैल्यू शुड बी, अगर इसको यहाँ से इफ इट हैज़ टू कम आउट ऑफ द सर्कल, द वैल्यू शुड बी बिटवीन दीज टू वैल्यूज़ के, ये तो √2 GL से ज़्यादा होनी चाहिए वेलोसिटी और √5 GL से कम होनी चाहिए. अगर √5 GL से ज़्यादा हो गई तो इट विल डू अ कंप्लीट सर्कल, √2 GL से कम हो गई इट विल डू एन ऑसिलेशन देन. सो मेरी वैल्यू जो है, द वैल्यू ऑफ V0 शुड बी बिटवीन दीज टू वेलोसिटीज़. सो लेट अस पुट द वैल्यू √4 GL. ठीक है, √4 GL रख के देखते हैं. सो व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ √4 GL, cos अल्फा कम्स आउट टू बी -1. वी हैव सीन cos अल्फा की वैल्यू इज आर 2 GL माइनस रूट cos अल्फा minus V² by 2 GL. This is what we have calculated. Okay, so cos alpha is a √2 GL minus V² by 2 GL. यहाँ पे हमने वैल्यू V² की रख दी, V0 की रख दी √4 GL, so that will comes out to be 4 GL. 4 GL minus this will be -1. So -1 कितना हो गया मेरा? Here cos alpha comes out to be -1. So -1, if you put the value of -1 here, -1 cos alpha हो गया. So alpha comes out to be equal to pi. Alpha comes out to be equal to pi. So at this point it is saying कि अगर मैं एंगुलर एम्पलीट्यूड का मतलब हो गया कि माई वेलोसिटी, वेयर द वेलोसिटी इज गेटिंग 0, सो दैट मीन्स कि माई alpha is pi. So at this point only my velocity is my 0. At this point only my velocity is getting 0. And now we'll see the phi, at what point my tension is getting 0 if I send it with √4 GL. So it is showing कि मेरी velocity is not getting 0 between this point, so it will go up to this point. ठीक है, my velocity is not getting 0, so my particle has a tendency to go up to this point, up to C point my particle is having a tendency. अगर मेरे पास टेंशन रहे तो क्या हो रहा है ना, टेंशन पहले ही 0 हो जा रहा है, टेंशन पहले 0 हो जा रहा है. we'll see it from here, √4 GL. so if I put the value of √4 GL in this equation, हमने जो टेंशन 0 वाली इक्वेशन लिखी थी, इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ √4 GL हेयर, वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ 2/3. cos 2/3 इज आवर वैल्यू. सो cos phi comes out to be equal to -2/3, cos inverse comes out to be equal to 2/3. so it is the phi comes out to be lesser than 180 degree. यहाँ पे phi की वैल्यू lesser than 180 degree आ रही है. so that means कि it will get 0 in between this value. ठीक है, it will get 0 between this value. so when velocity is 4 GL, इनिशियल वेलोसिटी हम लोग दे रहे हैं, तो इट इज़ सफिशिएंट टू कैरी द बॉब अप टू पॉइंट C. यहाँ पे अगर मैंने √4 GL दी, सो इट इज़ सेइंग कि यहाँ से बॉब अपने पहुँच जाएगा यहाँ तक का, अगर इसको सपोर्ट मिल जाए किसी चीज़ का. ठीक है, अगर इसको सपोर्ट मिल जाए, इधर इफ़ आई प्रोवाइड ए सपोर्ट लाइक इफ़ इट्स किसी कंस्ट्रेंट से अगर मैं इसको बांध दूँ, सपोज वी आर हैविंग दिस ऐसे ट्यूब है, यहाँ पे ट्यूब के अंदर अगर मैं इसको फेंक रहा हूँ तो इट इज़ गेटिंग ए सपोर्ट फ्रॉम एयर. सो इन दैट केस इफ़ आई एम गोइंग टू गिव √4 GL, इट विल रीच अप टू द टॉप. ठीक है, बट यहाँ पे हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, ओनली कंस्ट्रेंट इज माई टेंशन. ठीक है, अगर टेंशन पहले ही 0 हो जाएगा देन इट विल गेट स्लैक. सो √4 GL पे टेंशन हमने देखा पहले ही इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में 0 हो रहा है √4 GL पे. सो दैट मीन्स इट विल नेवर डू द सर्कल एट √4 GL if it's connected with the string. सो √4 GL हमारा है, इनिशियल वेलोसिटी सफिशिएंट टू कैरी द बॉब टू द पॉइंट C. यहाँ से √4 GL दिया, ये इसकी टेंडेंसी है, इसको पूरा यहाँ तक ले जाएगा. ठीक है, बट टेंशन इज इक्वल टू 0 बिफोर C, टेंशन पहले ही 0 हो रही है. सो मोशन विल नॉट बी सर्कुलर, मोशन विल बी पैराबोलिक आफ्टर दिस पॉइंट. और वो थीटा कितना निकल के आ रहा है, थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू cos इनवर्स 2/3. आफ्टर द स्लैक द मोशन विल बिकम अ प्रोजेक्टाइल मोशन. और प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, सो यू गेट द वैल्यू ऑफ V हेयर, Vy निकाल लो, यहाँ से Vx निकाल लो. दिस थीटा इज नोन टू यू, फ्रॉम दिस थीटा यू कैन गेट दिस थीटा बाय सिंपल ज्योमेट्री. Vy आ जाएगा, यू कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हाइट, मैक्स हाइट, यहाँ से कितना ये हाइट रीच कर रहा है. यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ रेंज ऑल्सो. you can if it's been said कि after this projectile the particle is passing through some point, so you can put it in the trajectory equation जो हमारी थी, you can put that in that point, though that point
इन दैट ट्रेजेक्टरी इक्वेशन एंड सॉल्व व्हाट इज बीइंग आस्क्ड. सो इसके बाद फिर प्रोजेक्टाइल वाला आपसे पूछा जा सकता है. सो द क्वेश्चन कैन कम अ मिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड योर प्रोजेक्टाइल. ठीक है. सो हमने देखा ऑसिलेशन के लिए कंडीशन क्या है कि मेरी वेलोसिटी यहाँ पे इट शुड बी लेसर देन √2gl. फिर हमने देखा कंडीशन फॉर लिविंग सर्कल क्या है. कंडीशन फॉर ऑसिलेशन के मेरी टेंशन जीरो नहीं है, वेलोसिटी पहले जीरो हो रही है. सो टेंशन इज नॉट गेटिंग जीरो बट वेलोसिटी इज गेटिंग जीरो बिफोर टेंशन. ठीक है. एंड दिस सिनेरियो कम्स इन दिस केस. इन दोनों बीच में माई टेंशन इज नॉट विल नेवर गेट जीरो बट वेलोसिटी कैन जीरो इन बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स. ठीक है. सो उसके लिए वेलोसिटी जीरो होने के लिए मेरे को क्या देना पड़ेगा, मिनिमम वेलोसिटी इससे कम रहेगी. सो वेलोसिटी विल गेट जीरो बिटवीन दीज 2 पॉइंट एंड इट विल ऑलवेज डू एन ऑसिलेशन. नेक्स्ट इज लिविंग द सर्कल के लिए क्या है, मेरी टेंशन विल गेट जीरो बिफोर माई वेलोसिटी विल गेट जीरो. सो टेंशन में वेलोसिटी इज नॉट गेटिंग जीरो. आई हैव गिवन सम velocity which is more than this, that means it is not oscillating, it has gone up to this point, and my velocity is lesser than this, it should not cross over this. अगर ये यहाँ से क्रॉस ओवर कर गया, इसकी वेलोसिटी यहाँ तक पहुँच गई, √4-5gl से ज़्यादा दे दी, सो देन इट विल क्रॉस ओवर, इट विल डू अ कंप्लीट सर्कल. बट मेरी वेलोसिटी इन दोनों के बीच में रहेगी, सो इट विल रीच अप टू ए पॉइंट, फ्रॉम देयर इट विल गेट स्लैक्ट. सो क्या है, टेंशन विल गेट जीरो बिफोर द स्पीड, बिकॉज माई स्पीड जो जीरो हो रही है वो यहाँ पे जाके हो रही है. ठीक है. अगर फॉर इंस्टेंस इन दोनों के बीच में इफ़ आई पुट द वैल्यू √4gl जब कर रहा हूँ मैं, सो माई वेलोसिटी इज़ गेटिंग जीरो एट दिस पॉइंट. ठीक है. वेलोसिटी मेरी इस पॉइंट पे जाके जीरो हो रही है. सो अगर ये बॉल किसी से कंस्ट्रेंड रहे, ठीक है, और अगर मैं ये वाली वेलोसिटी दे दूँ, देन इट विल डू अ कंप्लीट सर्कल. बट द बॉल इज बिन टाइड विद द टेंशन एंड द टेंशन विल गेट slack at some other point, then the ball will come out of the circle. ठीक है. So this is what our discussion till this point. Now we'll move on. We'll see कि now again the same point, instead of thread if the light rod is there, that's what I've said ना, कि instead of thread अगर मैं यहाँ पे light rod दे दूँ, if I'll given a light rod, so उसमें टेंशन की वैल्यू ही नहीं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा. so it will keep on moving, it will come up to this point. यहाँ पे velocity जीरो हो गई but still it is having the inertia, so it will fall and it will come back. ठीक है. अगर मेरी यहाँ पे मैंने बोला अगर कोई कंस्ट्रेंट है कि इसको गिरने ना दे, जैसे रॉड ले लिया मैंने यहाँ पे, इफ़ आई एम सेंडिंग इट विद द रॉड, कि यहाँ पे रादर देन द स्ट्रिंग आई एम सेंडिंग दिस बॉल विद द रॉड, सो दैट मीन्स कि इस पॉइंट टेंशन कभी जीरो होगी नहीं. इस पॉइंट पे जैसे स्ट्रिंग स्लैक हो रही है तो टेंशन विल नॉट गेट स्लैक, सो द वेलोसिटी विल गेट जीरो अप टू दिस पॉइंट. सो टेंशन विल नेवर गेट जीरो इन द रॉड. सो एट दिस पॉइंट अगर मैं √4gl से फेंक रहा हूँ, देन इट विल गो अप टू दिस पॉइंट एंड इट विल डू अ कंप्लीट सर्कल. अगर then the thing is if constraint is there then √4gl is required for the complete circle. if non constraint, कोई constraint नहीं है, नॉन कंस्ट्रेंट का मतलब हो गया कि इफ़ यू आर सेंडिंग इट विद द स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग जिसमें टेंशन विल गेट जीरो, सो इन दैट केस आई कैन से √5gl चाहिए मेरे को, √5gl, आई नीड √5gl to do the complete circle. So that is but written here, instead of circle if you provide a light rod, if V0 is √4gl, then no slacking will happen, bob will reach at the top. At top it is having a zero velocity but inertia is there, because of inertia ball move forward and it will do a complete circle. ठीक है. Therefore particle if restricted, ठीक है, particle if restricted along the circular path, √4gl is sufficient to complete the circle. If non restricted it will come out of the path at cos inverse 2/3. ठीक है. So at this velocity, if it's √4gl, if it's not restricted means कि instead of a rod if we are having a string, अगर string है that means it is non-restricted, then it will come out of the path at cos inverse 2/3 and it will never do a complete circle. ठीक है. अगर वो restricted है and at √4gl it will do a complete circle. ठीक है. और अगर non-restricted है I need √5gl to do a complete circle. उस केस में मेरे को √5gl करना पड़ेगा to do a complete circle, right? ओके. सो दिस इज डिस्कशन के हमने वी हैव सीन इट, के तीनों डिस्कशन कर लिए टू डू द कंप्लीट सर्कल.
कंप्लीट वर्टिकल सर्कल के लिए क्या चाहिए मेरे को, वी हैव सीन इट कि इस पॉइंट पे जाके √6 GL हो जाए, √GL हो जाए व्हेन द मोशन इज, अगर मेरा ये रिस्ट्रिक्टेड है तो मेरे को यहाँ पे √5 GL की जगह √4 GL की ज़रूरत है। अगर ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, कोई स्ट्रिंग है, तो एट दिस पॉइंट आई नीड √GL और एंड एट द बॉटम आई नीड √5 GL। ठीक है, अगर ये नॉन रिस्ट्रिक्टेड, अगर ये रिस्ट्रिक्टेड मोशन है दैट मीन्स मेरी यहाँ पे रॉड है तो टेंशन विल नेवर गेट जीरो, तो यहाँ पे मेरा √4 GL से काम चल जाएगा और यहाँ पे मेरी चाहे वेलोसिटी जीरो हो जाए। ठीक है, दूसरा मैंने देखा कि फॉर माई ऑसिलेशन माई वेलोसिटी विल गेट जीरो बिफोर टेंशन। सो मैंने देखा कि इस पॉइंट में मेरी टेंशन कभी जीरो नहीं होगी, माई वेलोसिटी कैन जीरो। सो अगर मैं इसको √2 GL से कम पे यहाँ पे थ्रो करता हूँ, वेलोसिटी इज लेसर देन दिस, देन इट विल ऑलवेज डू एन ऑसिलेशन बिटवीन दिस P and T। थर्ड मैंने देखा कि स्ट्रिंग विल गेट स्लैक, सो if I provide a speed between √2 GL and 5 GL, the string will get slack at some point between B and C के बीच में। और अगर मैं स्पेसिफिकली इस स्पीड से भेजता हूँ √4 GL विच इज़ बिटवीन दिस, तब यहाँ पे cos inverse 2/3 पे the string will get slack। okay, now what we'll do, we'll find out the parameters TA, velocity, this centripetal acceleration and my tangential acceleration at point A, B and C, तीनों पॉइंट पे निकालते हैं। पहले A पे देखते हैं। A पे अगर मेरी velocity this is doing a complete circle, so here I'm providing VA as √5 GL, VC पे अगर मैं VA पे √5 GL दे रहा हूँ, so VC पे it should be √GL। ठीक है, it is doing a complete circle। so now we'll find out the value। so टेंशन कितनी होती है मेरी किसी भी पॉइंट पे, टेंशन इज इक्वल टू, वी हैव सीन टेंशन इज माई दिस T minus mg cos theta इज इक्वल टू mv²/L। सो mg cos theta इधर आ गया, तो टेंशन की वैल्यू हो गई T इज इक्वल टू mg cos theta प्लस mv²/L। वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे निकालनी है, सो इट वेरीज विद थीटा लाइक दिस, v0 minus √2 GL 1 minus cos theta। with using these two things we'll calculate the value of tension and velocity at each and every point। now tension at A देखते हैं, अगर मैं इसको √5 GL से कर रहा हूँ to do a complete circle, if I am throwing it with √5 GL, so यहाँ पे √5 GL की वैल्यू डाली मैंने velocity की जगह, and I put the value of theta at 0 because theta is 0, so then I've got the value of tension at 6 mg। acceleration यहाँ पे कितनी है, acceleration is my tangential acceleration is 0 because my g is coming in this direction, there is no component giving the acceleration here, so g sin theta, so tangential acceleration is basically my g sin theta, so theta is 0 here, so my tangential acceleration is 0। now what is my centripetal acceleration v²/L, v² की वैल्यू मैंने ये रख दी, then I've got the value as 5g। ठीक है, centripetal acceleration is by 5g। now at point B पे थीटा इज माई 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री हो गया तो जी साइन थीटा इज माई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी जी। नाउ विल फाइंड आउट द वैल्यू कि इस पॉइंट पे एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री व्हाट इज माई बी। सो थीटा यहाँ पे मेरा दिस वैल्यू इज √5 GL, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री 0 minus 2 GL कर दिया तो √3 GL वेलोसिटी आ गई। ठीक है, टेंशन निकालते हैं इधर, टेंशन इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ √3 GL हियर एंड वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ टेंशन एज 3 mg। एक्सेलेरेशन निकालते हैं, सेंट्रिपेटल एक्सेलेरेशन इज माई v²/R, v² मैंने यहाँ से निकाल दिया, इट कम्स आउट टू बी 3g। सी पॉइंट पे निकालते हैं, हमने देखा सी पॉइंट पे इट इज़ कमिंग आउट वंस आई पुट द वैल्यू ऑफ √5 GL, सो वी सी पे मेरी वैल्यू आ गई √GL। इस पॉइंट पे इफ़ आई पुट द वैल्यू हेयर वी सी की वैल्यू इफ आई पुट इट √GL, then I've got theta is equal to, I put pi, so this will become minus mg, this will also become plus mg, so tension comes out to be 0 at this point। so this is what our condition कि जब भी मैं नीचे √5 GL से फेंकूंगा मिनिमम टेंशन इस पॉइंट पे होगी, मैक्सिमम टेंशन वी हैव सीन हेयर इन आवर केस ऑल्सो कि टेंशन इज डिक्रीजिंग। सो दिस इज माई टेंशन 6 mg 3 mg एंड इट कम्स आउट टू बी 0 एट दिस पॉइंट। सो टेंशन इज डिक्रीजिंग while we are going from here to here। ठीक है, सो टेंशन इज डिक्रीजिंग, सो मैक्सिमम टेंशन इज एट दिस पॉइंट, मिनिमम टेंशन इज एट दिस पॉइंट। सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ टी मैक्स एंड दिस इज अ पॉइंट ऑफ टी मिनिमम। ठीक है, सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ टी मिनिमम एंड व्हाट इज माई velocity also, if you see velocity is also decreasing 5 GL, √3 GL and GL। ठीक है, और इस पॉइंट पे टेंशन वी हैव सीन 0। यहाँ पे सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन इज नथिंग बट माई आई पुट द वैल्यू ऑफ √GL इन mv²/R, सो यहाँ से g आ गया, टेंशन ये सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन विल बी g sin theta कम्स आउट टू बी 0, सो
सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कम्स आउट टू बी 0. सो यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि टेंशन इज कीप ऑन डिक्रीजिंग इफ आई एम गोइंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, एंड टी इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट ए एंड टी विल बी मिनिमम एट दिस पॉइंट. ठीक है, ये एक क्रूशल इन्फॉर्मेशन है. टी विल ऑलवेज बी मैक्सिमम एट दिस पॉइंट एंड मिनिमम विल बी दिस पॉइंट. ओके, but this is a case when we have only g in this direction. So if we have some pseudo force or something, if something is moving with acceleration here, so then in that case this will get changed. Okay, so that condition we are going to see it later on when we have the acceleration due to gravity only. So then in that case the t will be maximum here and t will be minimum here. Okay, now we'll see the condition of looping, जो कि हमने देखा था कि √5gl मेरे को नीचे देनी है अगर मेरा रिस्ट्रिक्टेड, अगर मेरा नॉन रिस्ट्रिक्टेड है. अगर रिस्ट्रिक्टेड है देन वी कैन गिव 5gl. सो इस केस में देखते हैं, इस केस में इट इज़ अ नॉन रिस्ट्रिक्टेड पाथ, it is a non-restricted path, so it may have a tendency to fall in between this and this. So we have to give minimum √5gl at the bottom, and then only maximum will be here √gl होगा, then only it will do a complete circle. जैसे कि वी हैव सीन के वर्टिकल सर्कल में, if the bicyclist is coming from here, if the motorcyclist is coming from here, it should have a minimum some velocity here, and it should have a some minimum velocity that is equal to √5gr here to do a complete looping, and to come out here. Otherwise, because it is a non-restricted path ना, कि यहाँ से it is having a tendency to fall between this point. ठीक है, इट इज़ हैविंग अ टेंडेंसी टू फॉल इन बिटवीन दिस पॉइंट. ऐसे कोई टेंडेंसी नहीं है जो इसको रोके यहाँ पे. ठीक है, इसको रोके यहाँ पे, तो इसके पास इट इज़ अ टेंडेंसी टू फॉल डाउन. सो दैट्स वाई वी कैन से बॉटम पे √5gr, टॉप पे यहाँ पे ये. अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं कि बीड इज़ अटैच टू द रिंग. अगर ये बीड है दैट इज़ अटैच टू द रिंग, सो नाउ इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड. तो यहाँ पे भी इट विल नॉट कम डाउन, हेयर. ठीक है, यहाँ पे इट विल नॉट कम डाउन. सो नॉर्मल का कंपोनेंट है, इट इज़ नॉट गोइंग टू ब्रिंग इट डाउन बिकॉज इट इज़ गेट सपोर्टेड फ्रॉम दिस रिंग. सो हेयर इफ़ यू गिव √4gl देन ऑल्सो हेयर अगर वेलोसिटी मेरी 0 भी हो रही है तो देन ऑल्सो इट विल रीच. सो कंप्लीटिंग द सर्कल कंडीशन विल बी √4gl व्हेन द रिस्ट्रिक्टेड पाथ इज देयर. थर्ड इज इफ द ब्लॉक इज मूव बिटवीन दीज टू सर्फेस, सो हेयर ऑल्सो जो नॉर्मल होगी इट इज़ गेट सपोर्टेड बाय दिस सर्कल. यहाँ से जो नॉर्मल का कंपोनेंट जो आएगा इसको नीचे गिराने की कोशिश करेगा, सो इट विल गेट ऑल्सो सपोर्टेड विद दिस सपोर्ट. सो देयर ऑल्सो वी कैन गिव मिनिमम दिस एंड मैक्सिमम अप टू 0. VB विल गेट 0 minimum. Maximum you can give √4gl for the completing circle. Okay, so इस केस में भी हमारा restricted path है, so it will do a complete circle, right? So this is a condition for a looping. Now we'll see some questions देखते हैं, we'll see some questions and then we'll wrap it up. Okay, so few questions देखते हैं. अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको अप्लाई करते हैं. ठीक है, so यहाँ पे देखा है particle is tied to the end. Okay, particle is tied to the end of the string oscillating in the circular arc in a vertical circle. ठीक है, vertical circular motion हो रहा है. The other end of the string is fixed at the center पे fixed है. The string has a breaking strength that is twice the weight of the particle. So breaking strength means ये tension maximum कितनी है मेरी 2 times of mg. और maximum tension कहाँ पे होती है, this point we have seen ना, maximum tension यहाँ पे है और minimum tension will be this point. जो ये complete circle कर रहा होगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे, अगर ये circular arc में अगर घूम रहा है oscillating in a circular, no, it is not doing a complete circle, it is doing a circular arc only. But still in the circular arc the tension will be maximum here or minimum at the last point where it is coming back from here. ठीक है, so tension will be maximum at this point. So this point की टेंशन हमारे को दे रखी है which is twice times of weight. We have to find out the maximum distance that a particle can cover in one cycle of oscillation, and the length of the string has been given 50 centimeter means 1/2 meter हो गई. ठीक है, because we have to find out maximum distance that a particle can cover in one cycle of oscillation. One cycle of oscillation का मतलब है जैसे, because the thing is के it is going to get a 0 velocity before the tension is going to get 0. So it has been given it is doing a circular arc, so obviously it is not doing a complete circle. Its velocity will get 0 before the tension is going to get 0. ठीक है, ये oscillation वाला केस है हमारा. So यहाँ पे हमारे को दे रखी है maximum velocity at this point. इससे we can find out the value of t, and it is going up to this point. At this point its velocity is getting 0. ठीक है, its velocity is getting 0 and from there it is falling back and it's doing a circular motion. मेरे से पूछा है कि एक साइकिल में मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर होगा. एक साइकिल होगा, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया और फिर यहाँ से यहाँ तक आया. ठीक है, टोटल कितना हो गया 1 2 3 4. सो 4 टाइम्स ऑफ दिस थीटा इज
theta and this is my radius L. सो आर एल मेरा एक साइड का हो गया, इंटू 4 कर दूँ मैं तो मेरा टोटल डिस्टेंस हो गया. तो मेरा ये डिस्टेंस आर एल हो गया, फिर ये डिस्टेंस आर एल हो गया, फिर यहाँ से आर एल हो गया, और फिर वापस जब आएगा तब आर एल. तो 4 L theta is my total value of my maximum distance. So now I have to find out the theta here. We have to calculate the value of theta at which my velocity is getting 0. At which my velocity is getting 0, it is nothing but my angular amplitude. So that we'll find out. So T max, it's been given to us, at which is at the bottom. We have already discussed. So now we'll apply that in our यहाँ पे circular motion कर रहा है. So we'll do TA minus mg is equal to mv square by r. यहाँ से we put the value of TA, so 2 mg at this point we have given. So from here we have got the value of vs root gl. तो यहाँ पे root gl velocity आ गई मेरी, which is lesser than root 2 gl, which is lesser than root 2 gl. So if you don't know, okay, if you don't know that it is doing a circular motion, so here it is here it has been shown कि velocity is root gl. root gl का मतलब है it will never go मिनिमम वेलोसिटी से कम है हमारा. तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, रूट 2 GL फॉर द ऑसिलेशन, तो उससे कम आ रही है. सो इट विल डू एन ऑसिलेशन. नाउ विल अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम टू गेट द वैल्यू ऑफ दिस थीटा. वर्क एनर्जी लगाया यहाँ पे कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर, दिस माई रूट GL माइनस ये कितना आ गया मेरा, दिस इज माई एल कॉस थीटा. सो एल माइनस एल कॉस थीटा एम जी इज इक्वल टू फाइनल यहाँ पे इस पॉइंट पे जाके वेलोसिटी इज गेटिंग 0. सो ये दिस ऑल्सो यू कैन डू एंड यू कैन अप्लाई द डायरेक्ट फॉर्मूला ऑल्सो, कॉस अल्फा वाला जो हमारा पहले फॉर्मूला था. इफ वी सॉल्व इट वी गॉट द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा. जैसे मैंने यहाँ पे वी स्क्वायर की वैल्यू आई पुट द वैल्यू ऑफ GL हेयर एंड आई सॉल्व इट, वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ थीटा एज π/3. नाउ डी विल बी 4 इंटू इसका लेंथ कितना है, एल इज माई 1/2 मीटर, 1/2 इंटू π/3. सो टोटल मेरा एंगुलर maximum distance it will travel is 2π/3. Okay, second is to find out the tension at the extreme end. So tension at the extreme end will be this and this. So at this point velocity is 0, so tension minus at this point, so this is my tension, so this is my mg, so this is my mg cos theta. So tension comes out to be equal to mg cos theta only because velocity is 0. So tension comes out to be, tension is equal to mg cos theta. So tb is equal to cos theta की वैल्यू कितनी आई है मेरी, π/3. we put the value 1/2, so mg/2 is my tension at the extreme end. Then we have to find out the acceleration of the particle at the bottom and the extreme position. इस पॉइंट पे acceleration निकालनी है, इस पॉइंट पे. so we have to find out AR and AT at both the situation. यहाँ पे AR निकाला, that is v square by l. v square की वैल्यू हमने निकाली यहाँ से GL, so GL by L comes out to be G. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है because it is vertical. इस पॉइंट पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज माई g sin theta. g sin theta हमने निकाला, sin theta is my theta is my π/3, so sin theta root 3/2, so it is the value. And this point angular my radial acceleration is 0 because my velocity will get 0, and because AR is my v square by r, so that's why my AR is 0 because my velocity is 0 at this point. So this was the question. Next देखते हैं. So next question में कह रहा है small ball is attached with one end with an inextensible thread moving in a vertical circle. तो यहाँ पे हमारे को दे रखा है it is moving already in a vertical circle. So that means के tension is not getting 0 at this point. So ratio of it, so and it is at this point the velocity should be greater than 5 GL. यहाँ से velocity इसकी greater than 5 GL है, then only it is doing a complete circle. Now the ratio of its maximum to minimum velocity is root g1. So maximum velocity और minimum velocity कब होती है, maximum मेरी यहाँ पे होती है, minimum यहाँ पे होती है. v max and v minimum. If you see कि यहाँ पे maximum होगी तो work done by the gravity against होगा, so that means kinetic energy reduce होती जाएगी, और इस point पे जाके जब मेरी potential energy maximum हो जाएगी, so kinetic energy will be minimum. So that's why the minimum at this point velocity होगी, maximum at this point. So इस velocity और इस velocity के बीच में मेरे को relationship दे रखी है, it is 2:1. Calculate the tension in the thread and the acceleration of the ball at the moment when the velocity is directly vertically downward. That means कि velocity is vertically downward if you're moving like this, so it will vertically downward at this point. So we have to find out the tension and the acceleration at this point. So TB and the acceleration means this, both the acceleration, my tangential acceleration and this. So इसके लिए मेरे को centripetal acceleration के लिए मेरे को velocity चाहिए होगी at this point B, और tension will be equal to your mv square. So vb की वैल्यू आ जाएगी, so मेरी ac भी आ जाएगा, tb भी आ जाएगा, और at is my g sin theta. So sin theta is my 90 degree, so at is already g, so that is what we have to find out. So here v maximum at c a, so that is 2v. Suppose we take it 2v naught, or this is my v naught, it's my
minimum velocity at this point. Now we'll apply the work energy theorem from A to C. निकालते हैं to get the value of v नॉट की वैल्यू निकालने के लिए we'll apply the work energy theorem. हमें रिलेशनशिप ही दे रखा है ना, we cannot say it is root 5 GL, it will be greater than root 5 GL here, but we don't know the exact value. To know the exact value हम लोग अब work energy theorem लगाते हैं between A and C. यहाँ पे कितना है, हाफ एम वी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, हाफ एम टू वी नॉट स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी कितना हो रहा है, टोटल हाइट कितनी है 2r, दिस r प्लस दिस r, सो mg इंटू 2r माइनस फाइनल वेलोसिटी इज माई हाफ एम वी स्क्वायर. सो यहाँ से सॉल्व किया, आई गॉट द वैल्यू एज वी स्क्वायर, वी नॉट स्क्वायर कम्स आउट टू बी 4/3 GR, दैट्स माई वेलोसिटी. ओके, सो नाउ ये वेलोसिटी आ गई. अब मैं यहाँ से यहाँ पे लेके जाऊँगा, फिर से वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं. सो देन वी कैन गेट द वेलोसिटी हेयर, वी बी की वेलोसिटी. सो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ से ये कितना वर्क डन बाय ग्रेविटी हुआ है, प्लस mgr, बिकॉज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इन द डायरेक्शन ऑफ mg है, प्लस mgr, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो गई, हाफ एम वी बी स्क्वायर. सो यहाँ से मेरा वी बी आ गया. आई पुट द वैल्यू ऑफ वी नॉट हेयर 4 GR एंड आई गॉट द वी बी एस 10 GR/3. दैट इज़ माई वैल्यू ऑफ वी बी. ये वैल्यू आ गई. टेंशन इज माई दिस टी बी इज़ नथिंग बट इट इज़ प्रोवाइडिंग दैट सेंट्रीपिटल फोर्स. सो टी बी इज़ माई एम वी बी स्क्वायर बाय आर. सो यहाँ पे वी बी की वैल्यू ऑलरेडी आ गई. सो वी पुट द वैल्यू, वी गॉट द वैल्यू ऑफ टेंशन. नाउ एक्सेलेरेशन एट पॉइंट बी विल बी माई ए रेडियल स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल स्क्वायर. टेंजेंशियल वी नो कि इट इज़ जी साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा इज माई 90, so it will comes out to be g. AR is my v square, vb square by r. So we'll take the value here, vb square की वैल्यू यहाँ से उठा के we got the value of AR as this, and we do the square and square root. Okay, so this way you can get the value. Okay, now we'll move on. Let's see another question. So इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि in a given system when a mass m is released, सो यहाँ पे है इनिशियल, सो यहाँ से इट गॉट रिलीज, इट विल स्विंग डाउन अलॉन्ग द डॉटेड आर्क. ठीक है, हाउ फास्ट इट विल रीच टू द लोएस्ट पॉइंट. सो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी हेयर वी बी, कि कितना तेज आ रहा है. सो वी कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और यू कैन अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम. ए नेल इज़ लोकेटेड एट पॉइंट डी. इस पॉइंट पे नेल लोकेटेड है एट डिस्टेंस डी बिलो द सस्पेंशन. सो ये डी नीचे, सो टोटल ये एल है, सो दिस विल बी एल. तो डी नीचे, नेल लोकेटेड है यहाँ से. ठीक है, नेल का लोकेटेड का मतलब है कि इसके पास से थ्रेड इस पर अटक जाएगा एंड देन इट विल डू अ सर्कुलर मोशन लाइक दिस. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो इट विल डू अ सर्कुलर मोशन इन दिस बिग एल. ठीक है, बड़े एल के बीच में. फिर जैसे ही ये यहाँ पे आके नेल से रुक जाएगा, सो नेल विल बी वर्किंग एज ए रिस्ट्रिक्शन टू इट, और उसके बाद ये स्ट्रिंग इतनी हो जाएगी. फिर ये इसके बाद it will do a circular motion like this. ठीक है, along the nail. So this will be the radius after that, L minus t, to do the circular motion. Initial radius will be this one for the big circle. Now we have to find out, पहले तो ये निकालनी है कि इस पॉइंट पे VB कितनी है. nail located point B below the suspension. Show that D must be equal to 0.6 L. ये D की वैल्यू should be equal to 0.6 L if the बॉल इज़ टू स्विंग कम्प्लीटली अराउंड द सर्कल सेंटर्ड अराउंड द नील. अगर यहाँ पे मेरे को निकालना है कि डी की वैल्यू, दिस डी शुड बी 0.6 टाइम्स ऑफ एल इफ़ ही हैज़ टू डू द कंप्लीट सर्कल. कंप्लीट सर्कल का मतलब जो मेरी यहाँ पे वेलोसिटी आएगी दैट शुड बी ग्रेटर देन, दैट शुड बी इक्वल टू रूट कंप्लीट सर्कल, दैट शुड बी इक्वल टू रूट 5 g. एल कितना हो जाएगा, एल माइनस टी. सो यहाँ पे जो भी मेरी वेलोसिटी आएगी वी जस्ट पुट इट इक्वल टू रूट 5 दिस वन. Then we can get the relationship between D and L. If D is equal to this, then find the change in tension in the string just and after it touches the string. So अगर D की वैल्यू मेरी ये है, so नेल से टच करने से पहले the tension will be this complete, ये पूरे वाले इसके बीच में जो टेंशन होगी, और ये हो जाएगी यहाँ पे AR will be this and यहाँ पे जो होगी मेरी mg विल बी दिस. ठीक है, सो यहाँ पे जो AR जो आएगी दैट विल बी बिकॉज ऑफ दिस कंप्लीट लेंथ. ठीक है, जस्ट बिफोर द नेल, और जस्ट आफ्टर द नेल हो जाएगी मेरी, देन R विल बी दिस वन. तो टेंशन विल बी TB जस्ट आफ्टर द नेल mg, और यहाँ पे जो अब जो होगा दैट विल बी दिस वन, दैट जो रेडियस बनेगा जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स आएगी, इट विल बी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी दिस मच ओनली. That is the difference. So that is all we have to find out. So let us first apply the work energy theorem from here to here to find out the value at B. So कितना fall down किया है, so initial kinetic energy is 0. So fall down कितना हुआ है, इसका total L. So mgl is equal to final kinetic energy comes out to be half m vb square. So यहाँ से मेरी vb की वैल्यू हो गई रूट 2 gl. अब मेरा ये है कि ये कंप्लीट सर्कल कर रहा है, so that means जो यहाँ पे मेरी रूट gl है that should be equal to my
5g इंटू ये रेडियस कितना है इसका एल माइनस डी एल माइनस डी। सो इन दोनों को इक्वेट करना है, वन स्क्वायर करना है, इन दोनों को इक्वेट किया मैंने, स्क्वायर किया एंड आई गॉट द वैल्यू ऑफ डी एस 0.6 एल विच इज़ बीन रिक्वायर्ड। थर्ड में से पूछा है कि वी हैव टू फाइंड द चेंज इन टेंशन। तो पहले नेल से पहले जो टेंशन होगी इसमें बिकॉज ऑफ दिस कंप्लीट हो गई, ये पूरा सर्कल ये वाला होगा, ठीक है, सर्कुलर मोशन ये वाला होगा जस्ट बिफोर, और नेल के बाद जो आएगा सर्कुलर मोशन ये वाला होगा। सो दैट्स वाई द टेंशन विल गेट चेंज, ठीक है। इनिशियल सर्कुलर मोशन इज दिस, तो टेंशन विल बी दिस ए बी। सो बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन इज AR1, ये बड़े वाले की वजह से, देन इस गॉट चेंज टू TB, और बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन ये छोटा वाला जो रेडियस होगा इसकी वजह से L माइनस डी। सो विल सी कि टेंशन T इनिशियल, दिस इज T इनिशियल माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय L, दिस कंप्लीट L, ठीक है। सो यहाँ से आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर की वैल्यू हमारे को पता है, वी जस्ट नो द वैल्यू वी स्क्वायर दिस 2gl, वी पुट द वैल्यू हेयर 2gl and we take it here and it comes out to be T initial comes out to be 3 mg। now T final निकालते हैं। T final में का मतलब है कि जस्ट नेल के टच करने के बाद TB माइनस mg, नाउ m v स्क्वायर बाय L माइनस डी करना है यहाँ पे L। सो L माइनस डी की वैल्यू मैंने हम लोगों ने निकाली है, D इज़ माई 0.6 L, D की वैल्यू 0.6 L, दिस कम्स आउट टू बी 0.4 L एंड दिस इज वी जस्ट पुट द वैल्यू है √2gl। सॉल्विंग दिस वी गॉट द फाइनल T फाइनल एज 6 mg, ठीक है। सो इनिशियली द टेंशन वॉज लेस एंड एज सुन एज इट द नेल विल हिट द टेंशन इज गोइंग टू इंक्रीज एट 6 mg, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट्स बीन asked to get in this question, right? Now we'll move on to our next question. So this is our last question for the day. So इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि a block is tied to one end of the spring, simple light string into the length L, whose other end is fixed to the rigid support। यहाँ से कनेक्ट कर रहा है। The block is given a speed at the lowest point √6 gl by 2, so that comes out to be 3.5 gl √gl। so it is coming under this condition, √2 gl minus √5 gl। so it means tension is getting 0 before the velocity is getting 0, so that means it will get slack and it will follow a projectile path। so that is been given। find the height of the speed at which the block leaves the circle। so that is again the projectile में उसकी वैल्यू निकालनी है। so from the projectile we have to find out the maximum height and also find the maximum height, find the height find the height and the speed at which the block leave the circle, ठीक है। तो one is to find out the complete height, this complete height, one is to find out the maximum height it reaches till finally, another is to find out this height, ठीक है, this maximum height it finally reaches। so दोनों चीज़ें निकालनी है मैंने। वन इज के इसके बाद जो है प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है ये वाली हाइट कि ये कितनी हाइट होगी, सो दैट इज़ व्हाट इट लीव्स द सर्कल विद दिस हाइट, एंड टोटल हाइट मेरे को निकालनी है दिस हाइट प्लस दिस टोटल सेंटर ऑफ द सर्कल से, वी हैव टू फाइंड आउट दीज 2 हाइट्स, ठीक है। नाउ दिस इज द कंडीशन ऑफ दिस कि टेंशन विल गेट 0 एट सर्टेन पॉइंट बिटवीन दिस। सो आफ्टर दिस पॉइंट भी इट विल डू अ पैराबोलिक पाथ करेगा तो इसकी एक मैक्सिमम हाइट आएगी। सो दिस मैक्सिमम हाइट वी हैव टू फाइंड आउट। T will get 0 at point P, string will get slack, therefore my perpendicular motion होगा, इसकी velocity है कि parabolic motion होगा, velocity है ये Vy आ जाएगी, ये Vx आ जाएगी। so Vy जो होगी मेरी V sin थीटा, ठीक है, V sin थीटा क्या होगा, V sin थीटा का होल स्क्वायर बाई 2y, 2g इज़ माई हाइट, मैक्सिमम हाइट बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल, ठीक है, प्रोजेक्टाइल की वजह से मैक्सिमम हाइट आ जाएगी ये वाली। तो मेरे को ये V निकालना है, V से and theta निकालना है, we have to find out V and this theta to get this value। so let's start। so we'll apply a work energy theorem from this point to this point to get the value of, first we'll get the value of with this one value you cannot get it because we have 2 unknowns here, velocity is also unknown and theta is also unknown, so we need one more equation which is our this equation we are going to apply for the centripetal force equation at this point P, ठीक है, बिकॉज अप टू दिस पॉइंट इट इज स्टिल डूइंग अ सर्कुलर मोशन। सो इस एक्सट्रीम पॉइंट पे विल अप्लाई अ सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन रेडियल डायरेक्शन में विल डू अप्लाई अ न्यूटन्स लॉ। सो फर्स्ट विल डू अ वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम हेयर टू पॉइंट पी। सो इनिशियल पॉइंट पे माई वेलोसिटी इज दिस, सो हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट इसकी रेज हुई, ये मेरी एल है, ये टोटल ये मेरी एल है एंड दिस इज ऑल्सो एल। सो एंड इफ दिस इज थीटा
if we take this as a theta, so this will comes out to be theta, this will be, so this is theta, so this is theta, so this value comes out to be L cos theta, L cos theta, this is L, so this value theta, so this value comes out to be L cos theta. So height total raised हुई है यहाँ से यहाँ तक L plus L cos theta, so this is the height raised. So work done against the gravity will come mg into L plus L cos theta, or final velocity comes out to be half m v square. So this is my one equation, दो unknown है, so we'll put another equation here. यहाँ पे will apply the Newton's law along this direction, that is इस direction में क्या है मेरा mg cos theta minus t, mg cos theta plus t is equal to mv square by r, mv square by L, but t is 0 here, so we just put mg cos theta is equal to, because t is 0, mg cos theta is equal to mv square by L. ठीक है, यहाँ से दो इक्वेशन आ गई मेरी. I just take out the value of v square here, that is gl cos theta, so I just put the value of gl cos theta here, gl cos theta मैंने यहाँ पे डाल दिया, and I've got the फिर cos theta की वैल्यू निकाल ली, cos theta comes out to be equal to 1/2 h is pi by 3 60 डिग्री. अब इस cos theta की वैल्यू को मैंने यहाँ पे डाल दिया in this equation, gl cos theta comes out to be equal to root gl by 2 is my velocity at this point. ठीक है, और ये theta है, this is theta, so this will be theta, so यहाँ से v sin theta is my यहाँ से v sin theta निकाल ला, v sin theta is my uy, v square sin square theta by 2g किया, that will give me the height. यहाँ से what will be my maximum height, projectile वाला फॉर्मूला लगा दिया, and we have got the value of 3/16 L. Now total height निकालनी है मेरे को, if I have to find out the total height, so find the height and the speed at which the block leave the circle. So ये मेरी height आ गई, and this height will be, so this one प्लस ये हाइट मेरी आ जाएगी यहाँ से दिस वन, टोटल हाइट के एट विच इट लीव द सर्कल, सो दिस विल बी L cos theta प्लस L. L मेरा नोन है, cos theta वी हैव ऑलरेडी टेकन इट आउट, सो वी हैव गॉट एंड ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस फाइनली. सो मैक्सिमम हाइट विल बी दिस वन, दिस विल बी द मैक्सिमम हाइट. सो मैक्सिमम हाइट विल बी टोटल इज L cos theta, दिस इज माई L cos theta प्लस L, दिस माई L प्लस दिस H max, और H max हमने यहाँ से निकाल लिया, H max we have taken it out because of this uy, so हमने निकाल लिया uy square by 2g, it comes out to be 3/16 L. ठीक है, and L cos theta, so total height comes out to be equal to L plus L cos theta and plus H. ठीक है, so that's how we have done. So that's all for today. इतना था अभी हमारे. We have got one more concept to understand. एक आध concept और रह गया. Then we'll apply some more questions in this non-uniform circular motion पे, vertical circular motion पे कुछ एक और questions देखेंगे, and then we'll finalize this work energy theorem chapter, और फिर इसके साथ हमारा mechanics 1 भी finish हो जाएगा. ठीक है, we'll take a quick review. आज हमने क्या क्या देखा. We have seen the motion in the vertical circle today. Vertical circle is nothing but we'll apply the same concepts of work energy theorem or mechanical energy conservation, but उसके अंदर हम लोगों ने we are finding the condition कि वो the ball should oscillate, the ball should leave the circle or do the complete looping. So हमने देखा complete looping में there should be the tension at the top, and the tension at the top जाके वो minimum होनी चाहिए, zero होनी चाहिए. अगर उससे पहले अगर zero हो गई तो it will never do a complete circle. ठीक है, so that is one condition for the looping we have applied and we got the value. Oscillation में हमने देखा कि the velocity will get zero before the tension, और हमने देखा कि from 0 to pi/2 थीटा तक में my tension will never get zero. अगर उसके अंदर मेरी velocity zero हो रही है then I can say my body will do acceleration. तो हमने find out किया कि अगर मेरी velocity is lesser than √2gl से मैं दे रहा हूँ, in that case my oscillation is happening. लीविंग द सर्कल की कंडीशन हमने देखी कि हमारी टेंशन इज़ गेटिंग जीरो बिफोर माई वेलोसिटी इज़ गेटिंग जीरो, एंड मेजरली हमने वर्टिकल सर्कल में देखा माई टेंशन इज़ ऑल्सो डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग थीटा एंड माई वेलोसिटी इज़ ऑल्सो डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग थीटा. ठीक है, ये हमने एक जनरल इक्वेशन हमने निकाली थी और उससे हम देख रहे थे. सो इस केस में हमारा बस इंटरप्ले ऑफ दिस केस है, कौन पहले जीरो हो रहा है. तो हमने लूपिंग में हमने देखा टेंशन इज़ गेटिंग जीरो बट वेलोसिटी इज़ देयर at that point for the looping,
एंड दैट इज इन द टॉप पॉइंट ओनली टेंशन इज गेटिंग जीरो. फिर हमने ऑसिलेशन में देखा माई वेलोसिटी इज गेटिंग जीरो बिफोर द टेंशन. लीविंग सर्कल में देखा माई टेंशन इज गेटिंग जीरो बिफोर द वेलोसिटी. तो टेंशन मेरी जीरो होगी इन दिस पार्ट ऑफ द सर्कल, ये वाले पार्ट में टेंशन विल गेट जीरो. सो वी हैव सीन द वेलोसिटी हेयर इन दिस. सो इस पॉइंट पे अगर मेरी √2 GL से ज़्यादा वेलोसिटी है बट लेसर देन √4 GL है, √5 GL है, सॉरी √5 GL, बिकॉज हमारा √5 GL वाली कंडीशन आई थी. अगर मैं यहाँ पे √5 GL देता हूँ तो फॉर द लूपिंग, अगर इन दोनों के बीच में मेरी वेलोसिटी है √2 GL से √5 GL के बीच में, देन आई विल से द स्ट्रिंग विल गेट स्लैक बिटवीन दिस पॉइंट. ठीक है. फिर हमने एक स्पेशल केस देखा था √4 GL में कहाँ पे स्ट्रिंग स्लैक कर रही है. उसके बाद देन आफ्टर दैट वी हैव सीन सर्टेन क्वेश्चंस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ दिस वर्टिकल सर्कल. Right, so that's all for today. अब we are having, let's see how much is left. So हमारा अब जो पोर्शन रह गया, we have to study the motion of the particle in the spherical surface. फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम में सर्कुलर मोशन, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन पे, एंड देन वी हैव सर्टेन मोर क्वेश्चंस, कुछ एक क्वेश्चंस और हैं, एंड देन आफ्टर दैट विल रैप इट अप. तो दो कॉन्सेप्ट्स रह गए हमारे, सर्कुलर मोशन इन इनर्शियल फ्रेम एंड मोशन ऑफ पार्टिकल इन स्फेरिकल सरफेस. ये दो कॉन्सेप्ट रह गए, और इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट्स के और जितने भी कॉन्सेप्ट्स अभी तक पढ़े हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्टिकल वाला, उसके बेसिस पे विल अप्लाई सम मोर क्वेश्चंस एंड देन विल क्लोज सून. सो ओके, ऑल राइट, थैंक यू.